Did you know the Vedas had six supporting sciences behind them? If the Vedas are the body, the Vedangas are its limbs. Ancient India created an entire system to preserve knowledge called the Vedangas. Can spirituality and science exist together? The Vedanga says yes. And today we are going to talk about that Vedangas. What are the Vedangas? Why are we even studying about them? And why are they separate entities from the Vedas? Welcome everyone to today's class. And today we are going to talk about the Vedangas, the Angs of the Ved. This is the part of Unit 1, syllabus of the BTech third semester of the IP University. And let's begin today's interesting topic on the Vedangas. But firstly, before talking about the Vedangas, let's look at the layers of the Vedic knowledge. Let's actually understand what this Vedic knowledge is made up of, since Vedangas are part of those Veds only. So let's start. From mantra to metaphysics, a journey through the four foundational strata of Vedic literature, each building upon the last to reveal deeper truths about the cosmos, ritual, and the self. The foundation, Samhita. Every Ved, हर वेद के चार main branches हैं. The first branch is called Samhita, the oldest and most foundational stratum of the Vedic literature. The vast treasury of hymns, prayers, and incantations dedicated to the cosmic deities. Rigved, hymns of praise to the gods of nature and cosmos. Samaved, melodies and chants down from Rigvedic verses. Yajurveda, prose formulas for ritual and sacrifices. And Atharvaveda, spells, healing chants, and worldly knowledge. So each and every Ved, that is the four Ved, had their own Sanhita. सभी वेदों की अपनी संहिता है. The ritualistic layer, Brahman. The Brahman are elaborative prose texts that accompany the Sanhita, serving as the definitive manuals of Vedic ritual practices. They explain the how and the why behind every sacred act. Every Ved has a Brahman. जैसी संहिता है वैसी सारी वेदों की ब्राह्मण है. Now, इस ब्राह्मण में आपको मिलेगा the answer of vow and high behind every sacred act. The sacred act performed precisely, called ritual, explanation, detailed priestly instruction and rites, and finally the meaning, cosmic and spiritual significance of that mantra is revealed. Now, the third layer is the Aranyak. Every Ved has a Sanhita, a Brahman and an Aranyak. Now, Aranyak का literal मतलब होता है forest text. Aranya मतलब ही होता है जंगल. The Aranyaks were composed for hermits and ascetics who had withdrawn from society into the wilderness. They pivot from external ritual towards inner contemplation. जनरली ये टेक्स्ट उनके लिए बने थे जिन्होंने अपनी लाइफ को त्याग के जंगल जाके संन्यास धारण किया था, इसलिए इसका नाम आरण्यक है. इन्होंने अपनी लाइफ को टुवर्ड कंप्लीट सैल्वेशन डेडिकेट किया था. फ्रॉम रिचुअल टू सिंबल, द फॉरेस्ट एज क्लासरूम एंड ब्रिजेस टू उपनिषद्स. इसकी भी बहुत से रीजंस हैं. पहला है रिचुअल्स आर रीइंटरप्रेटेड एज इंटरनल meditative acts rather than external ceremonies. इस अरण्यक से प्रूव होता है कि ये जो रिचुअल्स है ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ना कि सिर्फ एक थेरेटिकल सेरेमनीज. नेचर बिकम्स द टीचर. जब आप जंगल में जाते हैं आप बहुत कुछ सीखते हैं, और ये अरण्यक ही है जिसके बहुत सी चीजें आपको उपनिषद में मिलती है, और उपनिषद आज के टाइम में बहुत फेमस ग्रंथ है ऑफ द एंशिएंट वैदिक नॉलेज. नाउ the final ones called Upanishad.
Upanishad crown the Vedic corpus as Vedant, end of the Vedas. They abandon ritual prescriptions entirely, turning inward to interrogative the nature of reality itself. फोर्थ लेयर है उपनिषद की. सारे वेदों के अपने उपनिषद हैं. जी हाँ, देर आर 108 उपनिषद इन टोटल. और ये उपनिषद क्या है? ये एंड है वेद का, इसलिए इन्हें कहा जाता है वेदांत. इसमें आपको किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वेद के टेक्स्ट को एंटायरली स्पिरिचुअल या रिचुअलिस्टिक बनाने से खंडित यानी मना करके इसे एक रियलिटी की तरह प्रेजेंट किया जाता है, प्रूव करता है द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड एवरी रिचुअल. नाउ ब्रह्म, द अल्टीमेट इम्पर्सनल रियलिटी अंडरलाइंग ऑल एग्जिस्टेंस. उपनिषद में ब्रह्म की बात है. आप याद रखिएगा, ये ब्रह्म ब्राह्मण नहीं है और ना ही ब्रह्मा जी हैं. ये एक अलग ही एंटिटी है. रैदर एंटिटी भी नहीं, ये एक अलग पावर है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं. और वही रियलिटी है, ये बताया जाता है उपनिषद में. आत्मा के बारे में बताया जाता है और मोक्ष कैसे मिलता है ये बताया जाता है उपनिषद में. नाउ अगर हम रिकैप करें, सबसे पहली लेयर है संहिता, देन ब्राह्मण, देन आरण्यक और फाइनली उपनिषद. दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ एवरी वेद. हर वेद के पास ये 4 लेयर है ही. नाउ वैदिक नॉलेज एज सॉफ्टवेयर लेयर्स. पहला संहिता, कोर कोड. ब्राह्मण एपीआई डॉक्यूमेंटेशन की तरह होता है. आरण्यक एडवांस यूजर मैनुअल है और उपनिषद है आपका द एआई लेयर. आई होप आपको ये समझ आ रहा हो, सिंस आप सब एक टेक्निकल फील्ड से आते हैं, एक साइंस के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा आपको फन वे में लर्न करने के लिए ये तरीका आपके लिए रखा है. ये एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू है कि संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्य क्या है और उपनिषद क्या है. द इंपॉर्टेंस इन द आइकियस. पहला है bedrock of philosophy. Vedas underpin all of Hindu philosophy, ethics, and spiritual practices. A living intellectual tradition spanning millennia. Universal accessibility. Each layer speaks to a different seeker, from the devotional worshipper to renunciate philosopher, making the system comprehensively inclusive. हर एक लेयर जो है इसकी, वो डिवोशनल वर्शिपर से लेके एक फिलोसफर तक सबके लिए बराबर है. इसलिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूसिव चीज है. पाथ टू रियलाइजेशन. Together, these texts chart an integral map of the universe, humanity's role within it, and the ultimate truth to spiritual liberation. एक्चुअली में ट्रुथ क्या है ये बताना इन टेक्स्ट का काम है. हमें जो लगता है हम एक गोल सेट करते हैं, उस गोल को अचीव कर लिया तो वो लाइफ हमारी कंप्लीट हो गई. एक्चुअली में ये नहीं होता. ये एक डिफरेंट एंगल है वर्ल्ड को देखने का, जबकि रियलिटी ये है कि सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है. और आप जो एक लाइफ सोचते हैं कि मुझे सक्सेस मिल जाएगी, आप खुश हो जाएंगे, वो एक्चुअली सिर्फ एक इल्यूजन है आपका. नाउ लेट्स एक्सप्लोर वेदांग्स. The 6 ancient sciences supporting the Vedic knowledge. सबसे पहला है शिक्षा, then कल्प. The third is व्याकरण, fourth is निरुक्त, fifth is छंद, and finally the sixth is ज्योतिष. शिक्षा, the science of sound. आज के टाइम लिंग्विस्टिक साइंस बहुत पॉपुलर एंड अपकमिंग फील्ड बनता जा रहा है. जब कि वैदिक कॉर्पस में आप शिक्षा पढ़ेंगे अगर पाठ को, तो शिक्षा में साइंस ऑफ साउंड बहुत हजारों साल पहले ही बता दिया गया था. मास्टरिंग सैक्रेड प्रोनाउंसिएशन. शिक्षा फोकसेस ऑन फिनेटिक्स, articulation, and the correct pronunciation of Vedic mantras. Precise sound production was considered essential for ritual efficacy. Vowel and consonant classification, accent and stress patterns, nasal and aspirated sounds, sequential sound combination. आज से हजारों साल पहले ही वॉवल और कॉन्सोनेंट का क्लासिफिकेशन करना, किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस करना या क्या एक्सेंट होगा, कौन से वर्ड्स नाक से बोलना है और कौन से मुंह से, ये सब आपको पहले ही बता दिया गया था. कल्प, द रिचुअल साइंस. स्त्रोत सूत्र. स्त्रोत सूत्र में मेजर पब्लिक रिचुअल्स रिक्वायरिंग फायर ऑफरिंग्स की बात होती है. गृह सूत्र, डोमेस्टिक सेरेमनीज एंड हाउस होल्ड रिचुअल्स. धर्म सूत्र, codes of conduct and social duties. And Shulba Sutra, geometric principle for altar construction.
कल्प वो फील्ड है जिसमें आपको ये 5 सूत्र, जिसमें आप सब कुछ कवर कर रहे हैं: पब्लिक रिचुअल्स, डोमेस्टिक सेरेमनीज, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सोशल ड्यूटीज फॉर दी सोसाइटी, प्लस ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स फॉर ऑल्टर कंस्ट्रक्शन। ये 5 मेजर फील्ड्स को यूज करना है और उस फील्ड का नाम है कल्प, द रिचुअल साइंस। नाउ थर्ड इज व्याकरण, ग्रामर एंड स्ट्रक्चर, analyzing language. Vyakaran established systematic rules for Sanskrit grammar, morphology, and syntax. Parani's Ashtadhyayi remains the foundational text. Word formation and derivation, sentence structure principles, precise grammatical classification. आज से कई साल पहले एक ऋषि थे पाणिनि, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द फेमस अष्टाध्यायी, और उस अष्टाध्यायी को व्याकरण, संस्कृत व्याकरण जो वन ऑफ द एंशियंट ग्रामर है वर्ल्ड की, उसका बेस माना जाता है। और आज भी स्टूडेंट्स संस्कृत में व्याकरण में अष्टाध्यायी को जरूर पढ़ते हैं। निरुक्त, द एटमोलॉजी, वर्ड ओरिजिन्स, निघंटु और निर्वाणा। नाउ वर्ड ओरिजिन, किसी वर्ड का रूट क्या है या वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये है निरुक्त में। अब आप इसको समझिए, एक मुनि थे यास्क, जिन्होंने निरुक्त बनाया और उसमें डिफिकल्ट वैदिक टर्म्स को एक्यूरेट मीनिंग के साथ इंटरप्रेट करके लिखा, ताकि सारे जनरेशन के बच्चे उस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब और प्रोनाउंसिएशन समझ सके। यानी एंशिएंट डिक्शनरी ऑफ वैदिक वर्ड्स वाज कॉल्ड द निरुक्त। नाउ छंद्स, द साइंस ऑफ मीटर। हमने ये पता लगा लिया कि कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, या कैसे उस चीज का उच्चारण होगा, हाउ वुड बी द प्रोनाउंसिएशन। नाउ जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, क्या उसे गा के किया जाएगा या उसको सिर्फ बोल के किया जाएगा, दैट कम्स अंडर छंद। छंद classifies Vedic verses by syllabic patterns and rhythmic structures. Each meter creates specific sonic effect. छंद होता है किस तरीके से गाना है। आप किसी भी मंत्र को गाते हुए अगर पढ़ते हैं तो जो वो गाने वाला पार्ट है वो है छंद। कुछ वैदिक छंदों के नाम है यहाँ पे: गायत्री छंद जिसमें 24 सिलेबल्स होते हैं, त्रिष्टुप छंद जिसमें 44 सिलेबल्स होते हैं, और जगती छंद जिसमें 48 सिलेबल्स होते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही हो। Now, finally, the sixth Vedang called Jyotish, time and space. Solar movements, lunar cycles, stellar patterns, and ritual timing. This is the astronomy today we know. आज इतनी फेमस है एस्ट्रोनॉमी, नॉट जस्ट टुडे, इवन आज से हजारों साल पहले भी ज्योतिष उतनी ही फेमस थी, नॉट जस्ट फॉर प्रिडिक्शंस बट फॉर कैलेंडर, फॉर नेविगेशन पर्पसेस एज वेल. Jyotish combines astronomy with timekeeping to determine optimal times for Vedic rituals and ceremonies. इसीलिए सिर्फ किसी प्रिडिक्शन की ही नहीं, बल्कि ज्योतिष का यूज टाइम कीपिंग के लिए भी यूज होता था। जब आप ओशन ट्रेवल करते थे तो उस टाइम नेविगेशन के लिए भी ज्योतिष का यूज हुआ करता था। Now 6 sciences and 1 purpose given on their screen are the 6 Vedangs that are part of Ved, और ये 6 वेदांग मिलके ही वेद को कंप्लीट करते हैं। टुगेदर दीज 6 डिसिप्लिन्स एंश्योर्स एक्यूरेट प्रिजर्वेंस, प्रॉपर परफॉर्मेंस एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक लैंग्वेज। अगर किसी ने वेदांग नहीं पढ़ा तो वो वेद नहीं पढ़ सकता, ना वो प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा, ना वो मीनिंग डिसिफर कर पाएगा, ना उसको समझ आएगी, और ना ही उसको पता चलेगा कि वेद क्या बोल रहा है। सो नाउ in the next class, we are going to talk about the Vedic life of ancient time and how people used to live in the Vedic period. For now, that's it for today. Thank you for watching. And if you like our channel, feel that our content is really helping you, kindly subscribe to our channel, like, share and comment. और हम वेट करेंगे आपके questions का, आपके doubts का। अगर कुछ भी हो तो आप comment down करें. Till then, we'll meet in the next class. Keep healthy and keep studying. Bye.